Can you confirm if you can see the screen, hear the voice? Talk to me, people. Vocabulary mil gayi? I क्या vocabulary? The list. All right. So let's begin. We are going to start with the A series now. So all right. ठीक है जी. So मेरे बच्चों आंसर्स बताना शुरू करें. Admonition. Sounds like a Bengali word, no? Admonition, admonition, no? Okay, what's the answer? Warning, warning it is. Then we have affix. Affix is stick on. Good. And then we have amicable. We need the antonym for this word. Antagonistic. Antagonistic is someone. Protagonist कहते हैं हीरो को. Yes, बिल्कुल सही है. Antagonist is the villain, the enemy, the negative. Yin to yang, yeah. Appropriate is yeah, right. Do you understand yin and yang? There is a Chinese symbol like this, something, you know. Yes. So one is entirely black, and the other one is entirely white. So this represents the darkness or the negativity, and this presents the light or the positivity. Like this is and protagonist, antagonist, acha, bura, God, Satan. Different cultures have different versions of that, right? Yin and yang. I believe yin. एक होता है yang. Whoops. Y-I-N-G and Y-A-N-G. Yin and yang. All right. Okay. Arena sir कहाँ पे किसकी example दिखती है arena में? Arena is a college basketball stadium. And then we have apprehended. Arrested is good, sir. Arrested is very good. सही है. अच्छे हो तुम. Who's affluent? Someone who has a lot of expensive cars and large houses. Yeah, rich. Ambush. Surprise attack. Where is surprise attack? This one. And then we have affix. What do you usually affix? A postage stamp, yes. And then we have animation. Okay. The property of being able to survive and grow. That's the answer, sir. Right? And then we have akin. Nope. Similar in quality or character. Ambiguous. Uncertain is good. Uncertain is good. Atrocity. Delta, it is an act of shocking cruelty. Online students are almost going together. Amnesty. Ji sir. Paragon, where is that? During which offenders are exempt from the punishment, yes. And abject.
low and down. Autonomous. What is autonomous? Liveliness. Where is liveliness? No, it's not liveliness. Autonomous is independence, and independence is self-reliant. Adamant. Adamant is someone who's very rigid and stubborn. So, who is stubborn and rigid in this case? Delta? Nope. जी सर. So this is impervious to pleas, persuasion, requests and reason. होता है ना कुछ लोग इनको कितना भी मना लो बोलते हैं नहीं भाई यही है. The law is the law. Assessment. असेसमेंट इज अप्रेजल सर. अच्छा जो नया वर्ड होगा वो लिख लिया करें प्लीज़. अप्रेजर आपको पता है कस्टम्स में एक जॉब होती है उनको कहते हैं अप्रेजर्स. अगर आपने कोई गवर्नमेंट में हो या मतलब CSS का शौक किसी को हो या गवर्नमेंट सर्विस का वैसे ही किसी को मूड हो तो वो कहते हैं जी कि सबसे पहले ना मतलब कुछ असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं उनके ऊपर कमिश्नर्स होते हैं उनके बीच में डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनसे नीचे होता है जैसे एक होता है इंस्पेक्टर हो सकता है राइट. सो कस्टम्स में एक पोस्ट होती है जिसको कहते हैं अप्रेजर्स. वो लेट्स सपोज आपने कहा जी मेरी शिपमेंट 100 करोड़ की है तो वो बंदा आगे चेक करता है कि वाकई 100 करोड़ की है या ऊपर की है क्योंकि उसके 100 करोड़ के इस वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है उस पर. तो वो आगे असेस करता है. तो असेस का मतलब अप्रेज करना. अप्रेजल का मतलब अप्रेजर इज समवन हु अप्रेजेस एंड अप्रेजल इज द इवैल्यूएशन ऑफ दैट. Okay, then we have bash, BCD, sir. First word and then we go to the writing part. Sir, this one. To strike, right? Okay, and then we go back to this, we discard it, and now we start writing. अच्छा जी, तो हमने कल डिसाइड किया था यार कि एक हमारे पास ऐसे होता है उसका पहले चैप्टर को हम बोलते हैं पहले पैराग्राफ को हम बोलते हैं नहीं वो तो एलिमेंट है ना उसके अंदर का हम उसको बोलते हैं सर क्या बोलते हैं. इस पैराग्राफ को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. उसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको हम हुक कहते हैं राइट. उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट राइट जिसके अंदर 1 2 3 टॉपिक्स हमारे पास जो हम एलिमेंट है उन्हीं के 3 एलिमेंट्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आई लव न्यूयॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीज़न. आई लव न्यूयॉर्क बिकॉज इट इज़ अ वेरी डाइवर्स सिटी. I love New York because it has very different kinds of food, and I love New York because it has a lot of job opportunities, for example, right? So हम ये लेके चल रहे हैं सर. ठीक है. तो हमने क्या कहा जी हमने ये कहा कि इसको तो हम हटाएं बारी बारी. हो गया. ओके चेक इट आउट. तो हमने कहा जी 3 पैराग्राफ होते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ and in this paragraph we need a hook which is basically attractive statement, attractive remark just to attract the reader's attention, right? और उसके बाद हमने बनानी है thesis statement.
थीसिस स्टेटमेंट का मतलब हमने अभी कहा जी, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच कंटेन्स 3 बेसिक पॉइंट्स विच विल फर्दर बी एलाबोरेटेड इन योर एसे। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि जी आई लव न्यू यॉर्क, राइट, एंड आई लव न्यू यॉर्क बिकॉज आई लव न्यू यॉर्क बिकॉज इट हैज़ a lot of job opportunities, right? I love New York as it is very diversified। और अभी ऐसा है नहीं, लेकिन हम ले लेते जी आई लव न्यू यॉर्क बिकॉज इट इज़ क्राइम फ्री। अगेन ऐसा है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो हमने लिखे 3 सेंटेंस है। ये 3 सेंटेंस लिखने की बजाय हम लिखेंगे सिर्फ एक सेंटेंस, और वो सेंटेंस कैसा होगा? आई लव न्यू यॉर्क बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सर फिर हम ये हटाएंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। इसको सर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इट इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड and it is crime free। तो हम क्या कर रहे हैं सर? हम एक्चुअली 3 सेंटेंस बना रहे हैं, 3 सेंटेंस को एक सेंटेंस में पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे अपने थीसिस स्टेटमेंट को बनाना, सही है? सो थीसिस स्टेटमेंट में कितने पॉइंट्स होने चाहिए? एटलीस्ट 3, राइट? तो थीसिस स्टेटमेंट को देखते हैं सर। लेट मी एक्सप्लेन दिस। थीसिस स्टेटमेंट ना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंथ, आई एम नॉट सेइंग कि वो 500 वर्ड्स का ना हो, दैट ऑब्वियसली मीन्स द सेम थिंग। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो 1 वर्ड का हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ तुमने लिखनी है ना थीसिस स्टेटमेंट में, यार वो इतनी ज़्यादा नैरो नहीं हो और वो इतनी ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा जी मैं एजुकेशन पे लिखूँगा, एजुकेशन पे पता नहीं कितने सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, कितनी सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, कितने कंट्रीज़ में उसके ऊपर काम हो रहा है, कितने कंट्रीज़ पे उसके ऊपर मतलब रिपोर्ट्स हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, राइट? हर कंट्री का अलग एक एजुकेशन सिस्टम है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं उसको छोटा कर लेता हूँ, एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। सो व्हाट आई ट्राइड टू डू, आई सेड लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो मैं एजुकेशन से थोड़ा सा छोटा हो गया, किस पे आ गया? मतलब now I'm not talking about education system of Norway, I'm not talking about education system of Germany, now I'm not talking about education system of Saudi Arabia, I'm talking about a particular country and its education system। तो मैंने टॉपिक को थोड़ा किया छोटा कर दिया, यस सर, और मज़ीद छोटा किया। अब पाकिस्तान को खोल के देखें तो उसमें ए लेवल्स भी है, उसमें सर इंटर बोर्ड भी है, उसमें फेडरल बोर्ड भी है, उसमें सखर बोर्ड भी है, उसमें यूनिवर्सिटी लेवल भी है, उसमें HEC भी है, उसमें पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की चीज़ें। तो हमने कहा नहीं यार, मैं सबके बारे में तो नहीं बात कर सकता, 150 वर्ड लिखने में मैंने बात करनी है सिर्फ अपने हाई स्कूल के लेवल की या 12th स्टैंडर्ड कॉलेज के लेवल की बात करनी है, सही है जी? टॉपिक और छोटा हो गया और मेरी ग्रिप में आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, अब हाई स्कूल पे बात करते हैं। तो हाई स्कूल पे अगेन इतने सारे बोर्ड्स, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पे बात करें, टीचर्स पे बात करें, किस पे बात करें? प्रोफेसर्स पे बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करें, कॉलेजेस पे बात करें, अगेन डिफरेंट टॉपिक्स। सो हमने कहा जी नहीं, मैं सिर्फ टीचर्स पे बात करूँगा, राइट? हमने टॉपिक को और ज़्यादा स्क्वीज कर दिया। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन इन पाकिस्तान, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी लिटिल एस्पेक्ट ऑफ दैट। मैंने कहा जी एजुकेशन, अब टीचर्स किसका? सर जर्मन का टीचर, इंग्लिश का टीचर, मैथ्स का टीचर, स्टैट्स का टीचर, इकोनॉमिक्स का टीचर, किस चीज़ का टीचर? वी डोंट नो दैट, राइट? तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने उसको उठाया और हमने कहा कि भाई हम अपने मैथ्स के टीचर पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो हम और टॉपिक को छोटा कर चुके हैं, राइट? हमने कहा जी मेरा मैथ का टीचर, आपको मैथ्स अच्छा लगता था? नहीं अच्छा लगता था? तो मैथ्स वाला नहीं है ना, ठीक है। सो मुझे मैथ्स के टीचर अच्छे नहीं लगते थे। फॉर एग्जांपल, अभी वो अल्लाह ना करे सुन रहा हूँ, लेकिन हम बोलते हैं। सो माय हाई स्कूल मैथ टीचर, ये बाद में स्पेलिंग जो है ना सर, कभी भी फर्स्ट गो में सही नहीं करनी है, स्पेलिंग हमेशा एंड में जाके करेंगे सही, ठीक है? माय हाई स्कूल मैथ टीचर
was not very good because, अब तुमने बोल तो दिया यार, और तुमने ये बात बोल दी कि जी मेरे मैथ के हाई स्कूल के टीचर जो है ना वो बिल्कुल अच्छे भी नहीं थे। अब ये बोलने से ना तुम्हारे सामने वाले बंदे की जॉब जा सकती है, सामने वाले बंदे का करियर इफेक्ट हो सकता है, उसका जो है एटलीस्ट कोई इंक्वायरी खुल सकती है, और कुछ नहीं तो लोग उसके फेलो टीचर्स बोलेंगे अरे यार ये तो अच्छा ही नहीं है, राइट। तो एक मोरल प्रेशर, एक पीयर प्रेशर उसके ऊपर आ सकता है। सो द पॉइंट इज़ यू नीड टू एस्टेब्लिश, जो भी आप क्लेम कर रहे हो, आप कह रहे हो ना कि भाई इसने मुझे छेड़ा, तो फिर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो आप उस एविडेंस को कैसे देंगे जी? माई हाई स्कूल मैथ टीचर वॉज नॉट वेरी गुड बिकॉज 3 रीज़न हमने देनी है सर। कौन सी? सर लेट इन क्लास, चलो ही वॉज ऑलवेज लेट, और सर उनके अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप भी नहीं थी, तो हैड नो ग्रिप ऑन द टॉपिक्स एंड बड़े रूड थे, लेट्स सपोज बड़े रूड थे, हाँ रूड थे सर। अब ठीक है जी, तो हमने ये क्या किया सर, हमने इसको एक एक इसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। बिकॉज ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर द क्लास, सही है सर। he had no grip on the topics that he used to teach, and he was always very rude with the class, right? So हमने उसी तरह की ना थीसिस स्टेटमेंट बना दी सर। कैसी? मुझे मूवीज़ जाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये वजह, ये वजह, ये वजह। वो जो 3 वजह ना वो हमने एक जगह पे लेके आ ली है। इट कैन बी 3 एडवांटेजेस, इट कैन बी 3 डिसएडवांटेजेस, इट कैन बी 3 ओपिनियंस, इट कैन बी 3 एविडेंसेस, इट कैन बी 3 एनीथिंग, बट इट हैज़ टू बी 3। तो आइंदा से आपने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, जो बंदा है ना, मतलब PhD प्रोफेसर या कहीं कोई पॉलिसी मेकर है, कोई CSS वाला बंदा है, कोई सेक्रेटरी एजुकेशन का, राइट, इफ़ ही इज़ लाइक अ गुड लिटरेट एजुकेटेड पर्सन, वो ना कभी भी ऐसे सीधी सीधी बात नहीं करेंगे। मैं एक बंदे से मिला था, ही वॉज अ DPO पेशावर, राइट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, राइट, और वो हमेशा ऐसी बात करते थे कि इसमें ना 3 बातें, तो वो ना 3 बातें पहले से क्लेम दे रहे थे कि भाई कि मैं आगे 3 बातें बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने उनको कहा जी टेररिज्म की क्या वजह, टेररिज्म क्यों हो रही है पाकिस्तान में, तो इससे पहले कि वो कुछ और बोलें कि ये वो कहते थे यार इसके 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड देन अल्टीमेटली ये। तो आपने जब भी सोचना है, आपने कम से कम तीन एंगल से सोचना है। आई कॉल इट, देखो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वेपन्स होते हैं, स्वॉर्ड्स, राइट। हम लोग ना अभी तक अपनी सोच को एज अ स्पीयर देख रहे होते हैं। चेक दिस आउट, ठीक है, ये है जी स्पीयर। स्पीयर के कितने पॉइंट्स? 1 पॉइंट, राइट। व्हाट आई वांट यू टू शिफ्ट राइट नाउ, क्या आप इस पॉइंट को अब चेंज कर दो कि लेट्स सपोज दिस इज, आई एम यूजिंग अ मेटाफोर टू टीच, राइट। मैं कह रहा हूँ आपकी सोच अभी तक एक स्पीयर की तरह काम कर रही है जिसका एक ही पॉइंट होता है। आपने इसको सर ट्राइडेंट में कन्वर्ट करना, राइट। आपने इसको 3 पॉइंट्स के साथ बात करनी है, ठीक है रे। जब भी अटैक करोगे 3 पॉइंट्स के साथ अटैक करोगे, मिनिमम 3 आर्ग्यूमेंट्स आपके पीछे बैकअप पे हों। ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, राइट। So this is your thesis statement. You need to have at least 3 points of establishing, 3 points of convincing, 3 points for saying anything that you want to say. क्या ये बात समझ आती है सब लोग को? अमन भाई, आरती, do we understand this? Talk to me. नहीं आती है समझ में? आ रही है सर, मुबारक हो, सही टाइम पे जवाब आ गया। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं सर, हम ये देख रहे हैं, हम पहले सीखेंगे नैरो डाउन कैसे करना है चीज़ को, सही है। फॉर एग्जांपल ये देखें जी सर, मैरिज पे हम बात नहीं करेंगे, मैरिज बहुत बड़ा टॉपिक है, मैरिज काउंसलर्स हैं,
और प्रोफेशंस देखो ना, इतने सारे जुड़े हैं उनके साथ, डिवोर्स लॉयर्स हैं, मैरिज लॉयर्स हैं। अच्छा, अब शादी जो है वो आपकी कोर्ट में भी हो सकती है, शादी आपकी चर्च में भी हो सकती है, शादी मंदिर में भी हो सकती है, शादी मस्जिद में भी हो सकती है, शादी तो ताम झाम के साथ भी हो सकती है, और शादी सादगी के साथ भी हो सकती है। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। लेकिन हमने कहा नहीं यार, हनीमून एक, और फिर हमने उसको भी छोटा किया। हनीमून इज़ परहैप्स द वर्स्ट वे टू बिगिन अ मैरिज। मुझे ये लगता है कि हनीमून से शादी नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है। ये राइटर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सही है। हम अब तुम लोग के में से कितने लोग होंगे जो कहेंगे यार नहीं ऐसा तो नहीं है, हनीमून तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको कन्विंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 पॉइंट्स चाहिए सर। इसी तरह माई ओल्डर सिस्टर हेल्प मी टू ओवरकम माई शाइनेस, किस तरह से उन्होंने मदद की आपकी? 3 वजह बताएं सर। टीवी इवेंजलिस्ट यूज द सेल टेक्निक्स टू प्रमोट देयर मैसेजेस, कौन सी टेक्निक्स हैं सर? प्लेयर्स हाई सैलरी आर बैड फॉर द गेम, फॉर द फैंस एंड फॉर द वैल्यूज़ ऑफ आवर चिल्ड्रन हु आर डेवलपिंग। सर तो इस एक्टिविटी को हम ज़रा करते हैं। लेसन नंबर 1 में देखिएगा, यही हमने एग्जाम्पल अभी डिस्कस की थी। सर इसमें सबसे बड़ा टॉपिक क्या? टीचर्स, मैथ टीचर, एजुकेशन, माय हाई स्कूल मैथ टीचर या माय हाई स्कूल मैथ टीचर? यस, सबसे ब्रॉड टॉपिक क्या? एजुकेशन सर, उससे छोटा? टीचर सर, उससे छोटा? नहीं सर, मैथ टीचर ना, कोई भी मैथ टीचर हो सकता है, स्कूल मैथ टीचर हो सकता है, यूनिवर्सिटी मैथ टीचर हो सकता है, हाई स्कूल मैथ टीचर हो सकता है। अब उससे छोटा क्या हुआ? और हमने कहा जी, फिर ये आई थी स्टेटमेंट, माई हाई स्कूल मैथ टीचर वॉज इनकॉम्पिटेंट बिकॉज ऑफ दिस दिस एंड दिस रीज़न। सही है ना? कौन सी 3 रीज़न थी? लेट आते थे, रूट थे, और पता ही नहीं था क्या पढ़ा रहे होते थे। सही है सर। अब 3 रीजंस आपने मुझे देनी है, ठीक है? लेट्स नंबर 2 सर, सबसे बड़ा टॉपिक, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाइएगा इसको। यस, सबसे बड़ा। सो which one is the biggest topic? रिक्रिएशन। फिर सर दूसरा? तीसरा? एंड द नेक्स्ट वन? डेंजर्स ऑफ बाईसाइकिल। सर बाइक राइडिंग इन द सिटी इज अ डेंजरस एक्टिविटी, क्यों? 3 बात में, स्पीयर नहीं मारना, ट्राइडेंट फेंकना। अब हाँ, बिकॉज जी एक पॉइंट बहुत अगेन छोटा है। ट्रैफिक जाम तो अच्छी बात है, ट्रैफिक जाम होगी, हम सुकून से निकल जाएंगे। छोटा है टॉपिक, हम इसको बोलेंगे बिकॉज ऑफ बैड और इनसफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? मतलब आप कहीं किसी यूरोपियन कंट्री में जाओ, कोपनहेगन में जाओ, आप नेदरलैंड्स में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि यार उन्होंने पूरा शहर जो है ना वो साइकिल के लिए अलग बना दिया। मतलब रोड्स अलग, सिग्नल्स अलग, पूरी कहानी अलग है। एक जगह आपको साइकिल में जाने, साइकिल के ऊपर जाने पे आपको शायद 20 मिनट लगेंगे, गाड़ी से वहीं जाएंगे तो आपको 50 मिनट लगेंगे। मतलब इतना मुश्किल उन्होंने बना दिया। सो थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अगर लेट्स सपोज बिकॉज ऑफ सिमिलर रोड्स फॉर कार ऑल्सो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आरती, मुझे एक बात बताओ, कराची में अगर हम बाईसाइकिल लेके चलते हैं तो स्मूथली जा सकते हैं? कोई चोरी वोरी नहीं होगी, कोई मोबाइल स्नैचिंग नहीं होगी? होगी ना? सो वो सोच सकते हैं सर। दूसरा मुझे एक बात बताएं, हम एग्जांपल देख रहे हैं कोपनहेगन की, नेदरलैंड्स की, डेनमार्क की, राइट? वहाँ तो मौसम बहुत मज़ेदार होता है। यहाँ कराची में जून जुलाई में चलाएं साइकिल,
एक सोच हमारे पास आ गई क्लाइमेट वाली, तो क्या रखें सर? एंड द रफ वेदर ऑफ द सिटी। सही है जी। तो ये सर हमारी बनी थी स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1 किधर है? पॉइंट नंबर 1 है ये सर, एंड सही है। तो पहले पैराग्राफ में क्या बातें करूँगा? पहले पैराग्राफ में बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एन एक्सीडेंट, लेकिन दिस इज अ डिस्कशन, अ टॉपिक फॉर लेटर, राइट? और फिर इसको साबित करेंगे आगे। दूसरा टॉपिक सेंटेंस में बताएंगे सेकेंडली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज like Pakistan do not have sufficient infrastructure for bike riding। और क्या सर? तीसरा क्या था? Lastly, the weather of Karachi is too harsh for bike riding। ये सर देखें, बॉडी के 3 टॉपिक सेंटेंस भी खड़े हो गए, है ना? अब इनको एक पैराग्राफ में आ गया, आपने कैसे कन्वर्ट करना है? एग्जाम्पल्स देनी है, स्टार्ट देना है, बस। आगे सर, अब आप बना रहे हैं सर, लिस्ट नंबर 4 बनाते हैं। चलें, सबसे बड़ा टॉपिक वेकेशंस, उससे छोटा टॉपिक। सही है। समर वेकेशन में क्या क्या कर सकते हैं? कैंपिंग कर सकते हैं। उससे छोटा टॉपिक, उससे छोटा टॉपिक, माई फर्स्ट कैंपिंग ट्रिप वॉज अ डिजास्ट्रस एक्सपीरियंस। क्यों? सोचें। ये सर मैं यहाँ बना रहा हूँ। जी सॉरी, ओके। दूसरी रीजन, and the weather was extremely horrible। सर ये लिखें ज़रा अपने पास। कितनी तीसरी चौथी तीसरी स्टेटमेंट बना दी सर मैंने, है ना? लिखें, इसके बाद से खुद बनाएंगे सर। Was impossible to travel on, or सॉरी आप लिखें। समझ आ रही है बात?
आप लोग को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? टॉक टू मी इफ यू अंडरस्टैंड. यस, गुड. चलें, अब इसके बाद से सब थीसिस स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं, ठीक है? कैन वी ट्राई दैट? ऑलराइट. ठीक है, चलें जी. सर ये अब आपकी बारी. सबसे बड़ा टॉपिक. नोप. रिटेल कंपनीज, जिसकी एक एग्जांपल होती है सुपरमार्केट्स. तीसरा, दैट्स गुड. चौथा, पीछे बैठा है. sorry, dealing with customers. And number 5, I've learned how to handle unpleasant supermarket customers. कैसे? By doing this, this and this. Let's go. तो हमने बनाया, सर मैं भी एक थीसिस बना रहा हूँ, आप भी अपनी थीसिस बना रहे हैं. आप कहते हैं सर अपनी अपनी अपनी. ये लेसन. I hope that you have written better than me. बच्चा लोग थीसिस स्टेटमेंट चाहिए. हो गया? तो क्या बनाई सर आपने?
हाँ तो बनाए ना, बताएं, अपना सेंटेंस बताएं। सर ठीक है, ये वाली नहीं बनाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने बनाई? नहीं बनाई? बोलो भाई। Zohaib, Murtaza, Aman, Ali, can you talk to me if you have made this thesis statement or not? Not? आ रहा है सर, आ रहा है, कुछ आ रहा है, बनाइए जी। चलें, बताइएगा सर, जो भी आपकी थीसिस स्टेटमेंट है यहाँ शेयर कीजिएगा प्लीज़। चलें जी, अगले टॉपिक पे चलते हैं सर। तब तक तो हमें क्या करना है सर, सबसे पहले टॉपिक को करना है नैरो, और सर यहाँ इसको बनाता हूँ। सर हमने क्या करना है, टॉपिक को लेके चलना है सर। क्या करना है, पहले हमारा टॉपिक अगर यूँ है कुछ, लेट्स सपोज अगर हमारा टॉपिक यूँ है तो हमने इसको छोटा करना है सर। हमने और छोटा किया, और जब ये बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे आ गया इधर, तो यहाँ से हमने कितनी ब्रांचेस निकाली, 3 रीजंस निकाल ली, 3 एडवांटेजेस निकाल लिए, 3 कुछ भी निकाल लिए, राइट। 3 पॉइंट्स हमने इस्टेब्लिश करना सर। यही 3 पॉइंट्स आगे चल के एक पैराग्राफ बनाएंगे, यही 3 पैराग्राफ बन जाएंगे, और ये हमारी क्या बन जाएगी, बॉडी। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली अपने पेपर को देखूँ ना सर, तो ये दिखता है कुछ यूँ, ये जिसके से 3 पॉइंट्स, और इन 3 पॉइंट्स से 3 पैराग्राफ्स, ऐसे ही ना। चलें सर, तो अब हमने कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करनी है सर। रेडी? सो हम ये करेंगे कि हम एक सेंटेंस लिखेंगे, 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वहाँ पे, और 1 पॉइंट आप उसमें ऐड कर देंगे। द फर्स्ट डे न्यू जॉब कैन बी नर्व रैकिंग, क्योंकि यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, फाइंड योर वे अराउंड द न्यू प्लेस। 3rd पॉइंट क्या होगा? फीलिंग अनकंफर्टेबल विद द सीनियर्स, टू द सीनियर नहीं, विद द सीनियर्स। तो इसको ज़रा एक जगह कंपाइल करेंगे तो क्या बन जाएगा सर? द फर्स्ट डे ऑन द न्यू जॉब कैन बी डिफ़िकल्ट as one has to what? One has to meet new people. और क्या सर? Find the way around the new office and feel uncomfortable around the senior colleagues. सही है सर? ये करना है सर। तीसरा पॉइंट आप पे देना। My stepmother has 3 qualities that I really admire: patience, thoughtfulness and देखो, अगर नाउन दे रहे हो तीनों, तो तीसरी वाला भी नाउन ही होना चाहिए। पेशेंस नाउन है, पंक्चुअल एडजेक्टिव है, पेशेंट एडजेक्टिव है, थॉटफुल एडजेक्टिव है, यहाँ पे दी हुई है नाउन थॉटफुलनेस। तो पंक्चुअल की नाउन क्या होनी चाहिए? कामनेस और पंक्चुअलिटी, राइट। सो माई स्टेप मदर हैज़ 3 क्वालिटीज दैट आई एडमायर। कैसे बोलेंगे सर? सर वॉज नहीं, जिंदा है अभी, देखें प्रेजेंट है ना। आपने मार दिया जीते जी। जी सर, तो बनाए सेंटेंस सर।
So my stepmother has three qualities that I admire. She has patience, thoughtfulness, and calmness. तो पेशेंस और कामनेस, अब जब यहाँ तक तो ठीक है, थीसिस बन गए, लेकिन जब लिखना शुरू करोगे तो कामनेस एंड पेशेंस इज द सेम थिंग. तो कुछ और देना सर. पोलाइटनेस सर, पोलाइटनेस आई एक अच्छा पॉइंट है. पोलाइटनेस. सो अब सेंटेंस कैसे बोलोगे? माई स्टेप मदर हैज़ थ्री क्वालिटीज़ दैट आई एडमायर. शी इज़ पेशेंट और शी हैज़ पेशेंस, कॉमा, थॉटफुलनेस एंड पोलाइटनेस. पहला पैराग्राफ पेशेंस पे, दूसरा पोलाइटनेस पे, तीसरा थॉटफुलनेस पे. समझ आती बात? So you are basically explaining your mother's three qualities, right? चलें आगे. The neighborhood grocery store is poorly managed because of these three reasons. The third reason is to be supplied by you, is to be explained by you. So, जी उसको अच्छे वर्ड्स में बोले ना. पॉइंट सही है. अंडरस्टॉक्ड है ना. तो अब सेंटेंस बोलो पूरा. कॉमा कॉमा एंड इस पे सर, एंड थर्ड से पहले शुगर, स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस, राइट. एंड इज ऑलवेज अंडर. अच्छा, अंडरस्टॉक तो पहले से लिखा हुआ है. यस, सॉरी, ये नहीं ला सकते सर, लाएं कुछ और. द aisles are dirty and understocked, और एंड सर उनके ऊपर भी डाल दें, बदतमीज़ हैं लोग वहाँ के, बदतमीज़ हैं. एंड द स्टाफ वॉज, क्यों भाई, ये देखो ऊपर स्टोर जिंदा है, तुम उसको अभी से दफना रहे हो. जी सर. एंड द स्टाफ इज वेरी रूड सर. ठीक है जी. अनएक्सपीरियंस स्टाफ, ये भी अच्छा है. लैक ऑफ स्टॉक, लैक ऑफ स्टॉक यार हमने पहले से डाला हुआ है आरती, तो ये वी नीड टू चेंज. तो अब हम क्या बोलेंगे सर? पूरा सेंटेंस पढ़िएगा. द नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर इज पोअरली मैनेज्ड बिकॉज द चेकआउट लाइन्स आर ऑलवेज लॉन्ग, द aisles are dirty and understocked, and the staff is very rude. और अमन ने बोला जी अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड. पहला पैराग्राफ होगा उनके लाइंस की कि मैनेज नहीं होता उनसे, ज़रा सा लोग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं लोगों के, सिस्टम फेल होना शुरू कर देते हैं. द aisles आर डर्टी एंड अंडरस्टॉक, चीज़ें हैं ही नहीं, मैं जो भी लेने जाता हूँ वो मिलता नहीं है. मुझे एक टी शर्ट लेनी थी, वो मिली नहीं वहाँ पे. द स्टाफ इज़ वेरी रूड, और लोग इंतहाई बदतमीज़ और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. द कॉलेज स्टूडेंट्स शुड लिव एट होम. इसके 3 फ़ायदे सर, 3 एडवांटेजेस बता दें कि कॉलेज स्टूडेंट्स शुड लिव एट होम बिकॉज ऑफ दिस दिस एंड दिस रीज़न. बताएं सर, आपको लगता है वैसे घर पे रहना चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स को? ठीक है, सही है, पॉइंट सही है आपका मुर्तज़ा. तो बताएं फिर. कॉलेज स्टूडेंट्स शुड स्टे इन टच, should live at home. They would stay in touch with the family. आरती का पॉइंट सही है. थर्ड वन इज इन टच विद द पेरेंट्स एंड फोकस ऑन द गोल्स. ये टच इन विद पेरेंट्स तो यहाँ पे मेंशन्ड है ना मुर्तज़ा ऑलरेडी. यस, दे कैन अवॉइड बैड कंपनी.
पता चला किसी ने ड्रग एडिक्ट बना दिया बंदे को, तो वो बच गया सर। आरती कहती हैं जी, अच्छा इसको पूरा अगर पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? College students should live at home because they stay in touch with their family. Our restrictions of dorm and apartment life, and they can avoid breakdowns. अच्छा, आरती का थर्ड पॉइंट है टू हैव गुड फूड टू ईट, ये वाला ऐड करो इसमें, खाना अच्छा मिलेगा तो कैसे बोलेंगे? They will get their desired food. सर तीनों पॉइंट्स एक साथ बोलने ना, याद है इसमें तीन बातें हैं, एक स्पेयर नहीं फेंकना है, ट्राइडेंट फेंकना है, Yes. अरशद नदीम नहीं बनना, हमने एक्वामैन बनना। यस College students should live at home because they are in touch with their family, and they avoid restriction of dorm or apartment life, and they will get their desired food. सही है जी। सर डैश इज द वर्स्ट जॉब आई एवर हैड। सर लेट्स से मैं आपको जॉब देता हूँ, आप बोलें जी बस ड्राइविंग इज़ द वर्स्ट जॉब आई एवर हैड बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट बॉस, पुअर पे एंड Hard work. Extreme hard work. हाँ Extreme hard work. एक्सट्रीम हार्ड वर्क। सर एक्सट्रीम हार्ड वर्क हो सकता है वेयर, हाँ लैक ऑफ ग्रोथ है, ड्राइवर है तो सदा ड्राइवर ही रहेगा बेचारा। एक्सट्रीम हार्ड वर्क और क्या होता है सर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब इमेजिन करो वो बसेस देखी हैं तुमने सिटी टू सिटी चलती हैं, डाइवो फॉर एग्जांपल हो गई, Yes, sir. तो वो बंदा सुबह 9 बजे बैठता है और सारा टाइम वो बेचारा गाड़ी चलाता रहता है, राइट। प्लस इट्स अ वेरी हाई अलर्ट जॉब, आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना हिंदी में, जहाँ नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी, राइट। सर CA studies are very stressful for many people because सर लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़बरदस्त, ये लें जी, वरी अबाउट लॉन्ग ड्यूरेशन। सर अब ये वरी 3 दफ़ा है ना, इसको 2 दफ़ा वाले को कुछ और, दे हैव टू थिंक अबाउट, दे हैव टू मैनेज अ लॉन्ग टाइम, सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सिनोनिम्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सर माई लैंडलॉर्ड एड्स टू, आप रेंट पे रहते हो यहाँ पे कराची में? रेंट है ना, हॉस्टल है, सही है। फिर आप यू कैन इमेजिन दिस, माई लैंडलॉर्ड एड्स टू द स्ट्रेस इन माई लाइफ बिकॉज क्या रेंट बढ़ रहता है। सही है, ही इज ऑलवेज इंक्रीजिंग रेंट। और कोई पॉइंट सर? आरती का भी टॉपिक अच्छा है, पॉइंट अच्छा, मतलब द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पेरेंट्स। एक पेरेंट्स से ज़्यादा ना वो रिश्तेदार, बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी से CA कर रहे हो, वो पूछते हैं, डिग्री होती है, राइट। आएंगे अभी, टाइम आएगा, अभी तो आपने शुरू किया है बिल्कुल। आगे जी, आवर नेबरहुड पार्क इज़ एन अनसेफ प्लेस टू विजिट, क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे डॉग्स होते हैं, ब्रोकन ग्लास होता है, और क्या होता है? सॉरी, चलो ये लो, पार्क पे अनहेल्दी रिफ्रेशमेंट, और क्या होता है सर? स्नैचिंग हो सकती है, रिस्क ऑफ मोबाइल स्नैचिंग, ठीक है जी। ये कुछ पॉइंट्स हमने अभी सोचे, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट्स को एक टॉपिक के ऊपर ना, लेट्स से द डिनर वाज अ डिजास्टर, क्यों सर? 3 पॉइंट्स अब देने हैं आप, अभी 1 दे रहे थे ना, अभी हम 3 दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ द स्पाइसी फूड, और ठीक है जी, पीपल वर कंप्लीटली बोरिंग। तीसरी वजह,
बिल वॉज टू हाई, है ना? एक सेंटेंस में बोलो। The dinner was a disaster because of spicy food, oily food, because of अब देखो स्पाइसी में तुम ऑयली भी डाल सकते हो ना, तो ये लिमिट कर दिया हमने, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बैड क्वालिटी ऑफ फूड या और अच्छा सब स्टैंडर्ड फूड। अब सब स्टैंडर्ड फूड जब तुमने बोली ना, तुम्हें मतलब कीड़े निकालने के और पॉइंट्स मिल गया। स्पाइस ज़्यादा था, तेल ज़्यादा था, पका हुआ नहीं था, अंडर कुक था, ओवर कुक था। अब तुम ज़्यादा बोल सकते हो। व्हेन यू ओनली सेड स्पाइसी, यू विल ओनली टॉक अबाउट स्पाइसी। या आगे बिल्कुल सही है जी। सर इसके बाद करते हैं आई हैव सेवरल वेज टू अर्न एक्स्ट्रा कैश। जी सर। from freelancing, सर ये लें जी, लाइक फ्री लांसिंग, extra पार्ट टाइम जॉब और एंड एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम। overtime. नहीं ये अच्छा, ये अच्छा है यार। ट्रेडिंग ऑनलाइन और मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। पता नहीं सारे पाकिस्तानी यार ये चैनल बनाने पे लग गए हैं आजकल, राइट? है ना? सो मेकिंग अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, पॉइंट इज़ ओके, ठीक है जी। अब सर इसको बनाते हैं अब टॉपिक के ऊपर, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान। बनाया सर? सर ज़्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। अगर हम क्या करें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, बताएं सर क्या करना चाहिए हमें? सर पहले हमने बनाया पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान कैन इंक्रीज इफ़ If you provide security, if security is improved और सर proper guidelines to tourists are given or green government, and green government, and any of them. and cleanliness is ensured। ठीक है जी, समझ आएगी बात आपको भाई लोग? टॉक टू मी, क्योंकि अभी हम इसके एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। आइए समझ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गई नहीं, चला। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम एक पास्ट पेपर खोल के देखते हैं। ओके, पास्ट पेपर में हमारे पास क्या है सर, हम आएंगे इधर और स्पीयर को बंद करेंगे, हमें स्पीयर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैप WST पास्ट पेपर्स। और मुझे एक बात बताएं सर, आपने इल्लामा इकबाल को कितने टाइम पढ़ा? इल्लामा इकबाल के बारे में कितना टाइम पढ़ा? ये झूठ बोल रहा है यार ये बंदा। सर जब वो पहली दूसरी क्लास की बुक होती है ना, उसमें पहला चैप्टर होता है, एक हमद होती है सबसे पहले, उसके बाद एक नात होती है उर्दू की, इंग्लिश की, राइट? उसके बाद आता है आपका क्या होता है सर, उसके बाद एक होता है चैप्टर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फॉर्मेट है हमारे लेक्चर, हमारे मतलब उसका करिकुलम का। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, हम अपने कंट्री पे, एक पाकिस्तान को एक कंट्री पे चैप्टर पढ़ते हैं, फिर या तो कायद आज़म होते हैं या इल्लामा इकबाल होते हैं। तो हम बचपन से इल्लामा इकबाल पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, ऐसे नहीं पहली दफ़ा नाम सुना। तो फर्स्ट ईयर में नहीं सर, 10th में, 9th में, 8th में, ऑल द वे टू द फर्स्ट क्लास वी नो अबाउट इकबाल साहब, है ना? चलें, तो ये सर मैं आपको कुछ दिखाने लगा हूँ। एक टॉपिक आया हुआ था सर आपके पास, अगर होपफुली हमें, ये सर ये देखें,
lessons we can learn from the poetry of Allama Iqbal. कर रहा हूँ सर. Lessons we may learn from the poetry of Iqbal. दिख रहा है सर? तो सर इस पे एक थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं. तो थीसिस स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है सर? सबसे पहले ना हम करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? पॉइंट्स कि लिखें क्या क्या सोचें, सोचना बेसिकली. सो अगर मैं आपको विजुअली इसको दिखाऊं ना, कभी बारिश देखी है ना सब लोगों ने? ऐसा तो नहीं नई बात है, कोई बारिश देखी भी है भाई सब ने? यस और नो गाइस? यू हैव सीन हाउ रेन वर्क्स राइट? सो बारिश का जो सेटअप है वो ऐसे होता है कि यार मतलब पहले एक कतरा आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा. ये मतलब जहाँ मर्जी हो सकता है. या पहले इस कुर्सी पे गिरेगा, फिर उस कुर्सी पे, फिर इस कुर्सी पे. ऐसा तो नहीं है ना? जहाँ मर्जी आप जा सकते हो राइट? सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ के बारिश होती है रैंडम. हाँ या ना? सो बारिश होती है रैंडम, यानी कोई ऑर्डर नहीं होता है. इसी तरह हमारे आइडियाज़ आने का भी कोई ऑर्डर नहीं होगा. जो हम पहले आएगा उसको लिख लेंगे. ऐसे बारिश होती है सर, ऐसे. ये देखें आइडिया जनरेशन पे सबसे पहले हम क्या से करते हैं? ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या? उस टॉपिक पे सोचना है सर. सही है. विदाउट फिल्टर, विदाउट जजमेंट, विदाउट क्रिटिक. जो चीज़ दिमाग में आ रही है ना वो पेपर पे लिख डाल दी हमने. सही है. इकबाल का क्या याद आता है सर? शिकवा याद आता है. इकबाल की शाहीन याद आती है. इकबाल का मर्द मोमिन याद आता है. पता नहीं और क्या क्या याद आता है. इकबाल की खिदमात याद आती हैं. इकबाल के 14 निकात याद नहीं आने चाहिए क्योंकि वो कायदे आज़म के 14 निकात है राइट? सही है ना? इकबाल ने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब याद आना चाहिए. तो जो भी आपके पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं सर वो अपने पेपर पे लिखना शुरू करें. लेट्स गो. जो भी आ रहा है सर. बाकी लोग यहाँ चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इकबाल? इकबाल ने कहा था एक अरसे से मेरी माँ नहीं सोई है. इकबाल मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है. वो ताबिश थे सर. इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं इकबाल. ये भी ये उन्होंने नहीं कहा था, ये फराज साहब ने कहा था, है ना सर? इकबाल ने कहा था यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो. तो इससे क्या समझ आता सर? वो ज़रा लिखें. इकबाल ने कहा था एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज. आका और साहिब मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए. तो अमन को समझ आ गई सर. इक्वालिटी की बात है यहाँ पर. इक्वालिटी हमने सीखी सर इकबाल से. इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. इकबाल ने कहा बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है. सर हार्ड वर्क इकबाल ने दिया सर हमें. सर इकबाल ने कहा एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाक का शगर. इसमें क्या है? इकबाल ने कहा वो तो ठीक है. दोबारा से सर. इकबाल ने कहा था क्या मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं था ना? इसकी मुझे टोटल लाइन याद नहीं आ रही, तो लेट्स गेट टू द टोटल लाइन. सर मिल जाए अब ये. ओके मुश्किल है सर. नहीं है जी. चलें याद आता तो कोई नहीं. और बहुत सारी चीज़ें सर इकबाल की. इकबाल ने कहा हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान.
सर कुछ याद आ रहा है इकबाल का? वो बहुत पहले बोला था, लेकिन ठीक है। और सर और कुछ याद आ रहा? नहीं याद आ रहा सर, पता नहीं यार, याद ही नहीं आ रहा। चलें जी, तो इकबाल की पोट्री से हमें समझ आई क्या बातें सर। मैं आपके साथ साथ देखें, मैं भी आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था, तो मैंने समझा कि इकबाल कहते हैं, वो सुना किस कदर गिरा तुम पर सुबह की बेदारी है, हमसे है कहाँ प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। नहीं, मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। तो वो बोलते हैं सर नमाज, वो बोलते हैं नमाज ना भी लिखें तो आप बोलें लव फॉर अल्लाह, लव फॉर द क्रिएटर, राइट। और क्या कहते हैं सर? वो कहते हैं यूनिटी सर, मौजूद है क्या, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, सही है। वो कहते हैं एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नीला ताबा खाक से लेकर नील का शगर। इसके बाद क्या सर? यूनिटी आ गई। उन्होंने कहा तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए, उकाब ये तो चलती है तेज़ तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। उन्होंने कहा खुदी को कर बुलंद इतना, तो सेल्फ एस्टीम के ऊपर उन्होंने बात की, राइट। और क्या सर? उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की। तो भाई इनमें से एक थीसिस स्टेटमेंट बना दो। क्या? द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम इकबाल आर मैनी विच इंक्लूड दिस दिस एंड दिस। लिखें सर। सर एक थीसिस स्टेटमेंट दे दें मुझे। Iqbal was a great poet who taught us about unity, hard work and esteem through his poetry. ज़बरदस्त आपकी तैयार हो गई भाई आरती की थीसिस स्टेटमेंट। सर लव फॉर अल्लाह, यूनिटी, हार्ड वर्क एंड सेल्फ एस्टीम एंड एजुकेशन एंड इक्वालिटी। सर इनमें से अब क्या करेंगे? जो आपको लगे ना, ये अब इतने सारे हमने सोच लिए ना, हम क्या करेंगे इनमें से जो सबसे तगड़े 3 टॉपिक हमें पता है ना, उनको रख लेंगे, बाकी सबको उड़ा देंगे। जिसके बारे में मुझे लगे यार कि मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ, राइट, इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँगा सही तमीज़ से। तो हमने इसमें से क्या क्या रखना है? यूनिटी रखना सर, यूनिटी। हार्ड वर्क रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं सर। सेल्फ एस्टीम संभाल लेंगे, या ये अभी खुद भी नहीं पता क्या चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं। क्या करें? इसको छोड़ देते हैं। एजुकेशन एंड इक्वालिटी सर, ये वाली बात 3 चाहिए हमें। ये रखें सर, तो फिर छोड़ें किसको? इक्वालिटी छोड़ दें। इक्वालिटी हैरत है यार, लेकिन चलें ठीक है। अभी कितने सर? लव फॉर अल्लाह, यूनिटी, हार्ड वर्क एंड एजुकेशन, 4 हैं सर। अभी भी 3 चाहिए, सिर्फ 3। एक और उड़ाएं सर। ओके मुझे लगता है, देखो ये लव फॉर अल्लाह संभालना ना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन चलें ठीक है। अब क्या करें सर? पंक्चुएट कर लें। सेंटेंस बीच में चलते चलते कैपिटल हो सकता है? लेटर हो सकता? नहीं हो सकता, तो इसको हम यूँ लिख लें। अल्लाह प्रॉपर नाउन है ऑब्वियसली, तो ये सर हम रखेंगे। और अब सर हमारी थीसिस स्टेटमेंट तैयार है या कुछ रहता है अभी भी? अब सर
This is our thesis statement making process. Can you manage it? पक्की बात है, हो जाएगी? बस सर, आइंदा से हम क्या करेंगे, हम इससे सर एक निकालेंगे पास पेपर. किधर है पास पेपर? किधर चले गए भाई पास पेपर? यही थे, आई थिंक यही थे. चलो, तो हम यहाँ आएंगे और इससे निकालेंगे एक पास पेपर. कौन से पास पेपर? तो एक पास पेपर आरती, आप बताएं, और एक सर आपका नाम क्या था? हसीब. हसीब, विच वन इज़ योर फेवरेट सीज़न? यहाँ पे है स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. विंटर सर. विंटर कौन सा? विंटर अभी हमने उठाया था 2019. लेसन्स वी में लर्न फ्रॉम द पोट्री ऑफ अल्लामा इकबाल. सर ये आपने अभी कर लिया. बाकी 3 टॉपिक बचे हैं. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान अच्छी हैं बुरी हैं? ओके. तो यहाँ पे भी क्या सिविल हॉस्पिटल में लेटे हुए होते हैं लोग रोड पे बेचारे, तो अच्छी नहीं है ना? तो अच्छी, चलो अच्छी नहीं है तो बताओ क्यों अच्छी नहीं है, 3 वजह दो मुझे. और अगर वो अच्छी लग रही हैं तो मैं तो भी मुझे बताओ कैसे अच्छी हैं, वो भी, उसकी भी 3 वजह दो. सर, कैन द वर्ल्ड सस्टेन अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? हो जाए फटा तो अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात बिल्कुल नहीं है सर. ना पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा ना इंडिया, और प्लस द वर्ल्ड विल ऑल्सो सफ़र. सर तो आप मुझे बताएं 3 वजह जिसकी वजह से ये अच्छी बात नहीं है. अभी नहीं, घर से करके आना है. सर फिर अगला टॉपिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ए टूल और थ्रेट टू अकाउंटेंट्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है ये जो एआई आया है इतना ज़बरदस्त किस्म का भी, तो एआई अकाउंटेंट्स के लिए स्पेशली अच्छा है या नहीं? अमन कह रहे हैं जी, आरती भी कह रही हैं अच्छा नहीं है. तो आप लोग मुझे बताना कि क्यों अच्छा नहीं है. आप कह रहे हो अच्छा है तो मुझे बुरा है. सर क्यों बुरा है वो मुझे बता दो. वो 3 वजह एटलीस्ट हो कि भाई जॉब चली जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, या लोगों को जो है वो दोबारा से सीखना पड़ेगा, या एआई टेक ओवर कर सकती है, जैसे जेम्स कैमरॉन बता देते एंड वो क्या टर्मिनेटर बन जाएंगे हमारे पास, बहुत सारे रोबोट्स हमें हंट करना शुरू कर देंगे. कुछ भी, जो भी आपकी वजह 3 सर वो मुझे बता दें. ठीक है, इसकी एक पिक्चर ले लें सर. आप लोग ज़रा दूसरा फ़ोन निकालें, स्क्रीनशॉट लें. स्क्रीनशॉट तो शायद नहीं आएगा, लेकिन आप लें सर एक दूसरा फ़ोन और या टॉपिक लिख लें अपने पास. इसके मुझे 4 थीसिस स्टेटमेंट चाहिए सर. 4 टॉपिक, एक हमने बना लिया, एक 4 सर आप घर से बना के ला रहे हैं. क्या बना रहे हैं? थीसिस स्टेटमेंट्स. पूरा ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ उसकी बैकबोन बनानी है. Healthcare facilities in Pakistan are very good because we have the most affordable hospitals, we have the best facilities available, we have the richest doctors available here. Healthcare facilities in Pakistan are very bad because we do not have the patient to the doctor-patient ratio is very low. The Medicare facilities are very expensive, and third reason अभी मुझे याद नहीं आ रही है. सही है जी, उसका PDF सेंड कर दूँ. अच्छा ठीक है जी. मुझे यार ये मेरा नंबर लिखो तुम लोग, और ये ग्रुप में ना मुझे एक मैसेज कर दो, या ग्रुप में कर दो या पर्सनल मैसेज एक कर दो. मैं आपको एक बंदे को पर्सनल भेज दूंगा, वो बंदा जो है ना वो आगे सबके साथ शेयर कर दे. सही है. 0336806345. ठीक है. सही हो गया भाई लोग? बोलो भाई. डन है. ऑनलाइन वालों को बोलने में ना थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइप करते हैं फिर इंटरनेट के थ्रू आती है चीज़. चलें, बहरहाल दैट्स ऑल फॉर टुडे. थीसिस स्टेटमेंट्स आर डन सर. थीसिस स्टेटमेंट इज व्हाट? इट्स द बैकबोन ऑफ द एसे. वी मेक 3 पॉइंट्स एंड दोज 3 पॉइंट्स आर फर्दर एलैबोरेटेड, एक्सप्लेन्ड इन द बॉडी पैराग्राफ्स. दैट्स इट. कल का होमवर्क क्या? 4 थीसिस स्टेटमेंट बनानी है. Auf Wiedersehen, Leute. Ja, schon. तो पिटारो से पढ़ो.